کیا منصور بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جماعت میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں یاسر؟ باہر ملک کو جاتے بھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے، حضرت جی میں جماعت میں جا رہا ہوں، وہ بھی فارن، کیا کرنا ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بولے اجتماعی اعمال کے علاوہ انفرادی جو وقت ملتا ہے اس میں 3 کاموں میں لگے رہو بولے. کتنے کاموں میں؟ 3. اجتماعی اعمال کے علاوہ، اجتماعی اعمال کسے بولتے ہیں؟ سارے مل کے کرنے کا کام کو اجتماعی اعمال بولتے ہیں. اب یہ تعلیم اجتماعی عمل، مشورہ اجتماعی عمل، بیان اجتماعی عمل، گشت اجتماعی عمل، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اجتماعی عمل، دسترخوان پہ بیٹھنا سارے ساتھی اجتماعی عمل، سارے ساتھی سو رہے یہ بھی اجتماعی عمل، سفر کرنا یہ اجتماعی عمل. اجتماعی عمل کے اندر ہے ہمارا کوئی انفرادی کام نہیں کرنا، نہ نہانا ہے، نہ دھونا ہے، نہ کچھ اور کام کرنا ہے. اس میں جڑے رہنا اجتماعی اعمال کے اندر. اور اجتماعی عمل میں کیا طاقت ہوتا ہے؟ چکی میں 1 دانہ پڑتا ہے، کیا جانی بھائی؟ میں اس کو جو ادھر بیٹھے تو سب میرے کو ادھر نہاتے، اب تم لوگ ادھر بیٹھے تو سامنے دیکھ رہے نہیں، وہیں بیٹھو 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 بیٹھو، نہیں بھائی بیٹھو. تو پھر میرے طرف متوجہ ہے تو بس ہے، ذرا ادھر متوجہ ہے تو بس، ادھر نظر ڈالنا نہیں. گھوڑے کو کہیں بھائی لگانے کا، ارے بولو گھوڑے کو کہیں کو لگاتے؟ ہاں، ادھر بازو کدھر بازو کا کیا بھی نظر آئے جانی کا ہو. اب ہم کیمرہ کو ادھر دیکھتے رہنا ہے، کیمرہ ادھر ہے ادھر دیکھتے رہو. کیا گھوش بھائی؟ نظر ڈالنا نہیں ادھر. کیا بول رہا ہوں؟ اجتماعی عمل میں کیا طاقت ہے اور انفرادی عمل میں کیا ہے؟ چکی میں 1 دانہ پڑا، چپک گیا، سارے دانے پڑے، آٹا نکلا، یہ طاقت ہے. 1 دانہ چپک گیا، سارے دانوں سے روٹی بنتا ہے، روٹی. تو ایک مرتبہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس زمانے میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ زمانے میں 3 سال اللہ کے راستے میں وقت لگائے. کتنے سال؟ 3 سال لگائے. اور جب بھی بنگلے والی مسجد کو آتے اپنے آپ کو نیا پاتے، کیا کرتے وہاں جب بھی؟ اسی لیے کتنا جاننے والا کام کا پرانا بھی ہو، نظام الدین کو جاتا اپنے آپ کو 0 پاتا. اس لیے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہمارے پاس آیا کرو، ہمارے پاس آئیں گے ہمارا چلائیں گے، نہیں آئیں گے تمہارا چلائیں گے. جب بھی وقت لگاتے آتے نظام الدین کو اپنے آپ کو نیا دستا. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں جب بھی یہاں آتا ہوں اپنے آپ کو نیا پاتا ہوں، یہ کام کے اندر میں کیسا چلنا ہے؟ پانی پینا ہے بھائی، کسی کو پینا ہے تو جلدی جلدی پینا، نہیں تو اسی سے رکھو بند ہے. بات چلتے ہیں تو پھر پیتے جا رہے تو میں بات نہیں کرتا. اور ایک بات یاد رکھو، چائے اگر آ گئی، پڑھنے والا سارے ساتھی چائے پی رہے تو نہیں پڑھنا، بند کر دینا. وہ چائے پینا ختم کے بعد پڑھنا. اس کا حقیقت تو اکثر دیکھتا رہتا ہوں جماعتوں کو میں، انہوں پیتے ہتے نہیں، اسے چائے کا عادت ہے نہیں، انہوں پیتے ہتے ان پڑھتا تھا. ہاں ایسا نہیں رہنا. چلو پی لو جلدی جلدی. کیا بول رہے ہوں میں؟ کیا بولتا رہا بھائی؟ حضرت جی جا کو بولتے ہیں بے چین میں نیا پاتا ہوں. کناک پوچھے سو مفتی صاحب، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے جب بھی میں یہاں بنگلے والی مسجد کو آتا ہوں
अपने आप को नया पाता हूँ, ये काम के अंदर मैं कैसे चलना को पूछे। तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बोले, इस काम के अंदर इस तरह चलना है जैसा असहाबों का कुत्ता चला है। एक ज़माने में कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया। सूरह कहफ में अल्लाह उस कुत्ते का जिक्र किया। वो कुत्ते के अंदर बड़ी तवाज़ु है, मैं तो कुत्ते का कुत्ता बोल के, लेकिन नेक लोगों की सोबत में था, वो बड़ी तवाज़ु थी। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया। ये काम के अंदर भी आप ऐसे चलना कहें। ऐसे मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बंगले वाली मस्जिद को आए। तो आए तो बोले, मुफ्ती साहब एक जमात आने वाली है, आने के लिए 3 दिन का वक्त है। आए के बाद वो जमात तुम्हें लेके जाना कहेगा। क्या करना? तुम्हें लेके जाना कहे। अच्छा एक काम करता हूँ, वो 3 दिन तक रायपुर जाके आता हूँ कहे। कहाँ जाके आता हूँ? रायपुर, क्योंकि वहाँ शेख अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, रायपुर। ये बात तो तुम्हारे को हजम नहीं होती, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। एक मरतबा मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह साथियों को पूछे, इस्लाह का ताल्लुक़ किसती है कहे? इस्लाह का ताल्लुक़। अक्सर साथी बोले इस्लाह का ताल्लुक़ ये शेख से है कहे, लेकिन मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाएँ इस्लाह का ताल्लुक़ शेख से नहीं, इस्लाह का ताल्लुक़ ये दावत से है। बोले इस उम्मत की जो इस्लाह होगी, जान और माल सही माने में इस्तेमाल का ढंग है, वो इस काम के ज़रिए से होगी, किसी शेख के ज़रिए से नहीं होगी। सबको तो हजम नहीं होती, लेकिन फिर भी बताया मैंने, हर बात बताता रहता हूँ मैं। उन्होंने गए वहाँ 3 दिन है, वो खानखा में उन्होंने बताया सो ज़िक्र तिलावत है, जो आमाल वहाँ के वजीफ़े है, वो इतना नूर नज़र आया उनको, जी भरे नहीं उन्हें के। वहीं रह गए 3 दिन के बाद। वो जमात पहुँची, अब इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह परेशान थे, जमात आ गई, ये मुफ्ती साहब आए नहीं, क्या बात है? रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को बोल भेजे कहलवा कि ये मुफ्ती साहब आको वहाँ बैठे, यहाँ जमात तैयार है, ले को जाना है। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती साहब को पूछे, मुफ्ती साहब आप यहाँ क्या कर रहे गए? हज़रत आप बताए सामाल है, इतना नूर नज़र आया, जी नहीं भरा, इसलिए ठहर गया मैंने, इसलिए ठहर गया। तो रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बोले, मुफ्ती साहब इनफरादी आमाल पहाड़ों के बराबर हो, इनफरादी आमाल पहाड़ों के बराबर हो, तराजू के एक पल्ले में हो, इज्तिमाई आमाल का एक ज़र्रा दूसरा पल्ले में रखे तो ये वज़न हो जाएगा। समझ में आई बातें? ये ताकत है इज्तिमाई अमल के अंदर है, इसीलिए जब हो रहा तो इसमें जुड़े रहना। हाँ, इसमें जुड़े रहना। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह बोले उनको, लाड साहब को, इज्तिमाई आमाल के अलावा इनफरादी जो वक्त मिलता वो 3 कामों में लगे रहो। बोले कितने कामों में? 3 काम। एक सीखते रहो या नहीं तो सिखाते रहो। अगर ये 2 नहीं है, अपनी इबादत में लगे रहो, या तो ज़िक्र या तिलावत या नफिल पढ़ते हुए या दुआ करते हुए। ये 2 भी नहीं है, तीसरी बात बोले सो जाओ। बोले क्या बोले? वली बन के वापस आएंगे। बोले हाँ, क्योंकि हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह के रास्ते में निकल के करने के कामा करे, नहीं करने के कामों से बचेंगे। करने के कामा नहीं करे, नहीं करने के कामों में लगेंगे। बोलने के बातें बोले तो नहीं बोलने के बातों से बचेंगे। अगर बोलने के बातें नहीं बोले तो लायनी बातों के अंदर लगे रहेंगे। हाँ, लगे रहेंगे। पहली जो बात है सीखना सिखाना, मौलाना सैयद खान से रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, ये साहबा वाली तर्ज है। सीखना और सिखाना साहबा वाली तर्ज है। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन क्या करते थे? या तो सीखते थे या किसी और को सिखाते थे, या तो सीखते थे या किसी और को सिखाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को
उमर रजी अल्लाह तआला पूछे, भाई अली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कब हम थे? बड़े ज़माने के बाद ये बात याद आ गई, वाक़या भूल ही गया था मैं, जिक्र करते करते साला गुजर गई है वाक़े की, अल्लाह ने जहन में डाल दिया। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला पूछे, भाई अली, कभी अल्लाह के नबी की मजलिस में तुम थे, तुम लोग, कभी हम नहीं थे, कभी हम थे, कभी तुम नहीं थे, एक वाक़े का इल्म मुझे नहीं है, आपको मालूम क्या कहे? अली रजी अल्लाह तआला पूछे, अमीरुल मोमिनीन क्या है वो? तो बोले, दुनिया में आदमी यानी किसी से दोस्ती गाड़ी करता है, गाड़ी, और किसी से लाइट करता है, हालांकि उसके अंदर अच्छाई नहीं है तो भी करता है, इसमें अच्छाई है तो भी लाइट से दोस्ती करता है, ये क्या है कहे? और दूसरा, आदमी ख्वाब देखता है, कुछ सच निकलता है, कुछ झूठ निकलता है, ये क्या है? बोले। तीसरा, आदमी याद करता है, कभी याद हो जाती है, कभी भूल जाते हैं, ये क्या है? पूछे। अली रजी अल्लाह तआला बोले, ये बात मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हूँ। अब पहले जो बात आप पूछे, दोस्ती, गाड़ी और लाइट है, आलम अरवा के अंदर है, एक दूसरों के रूह जो है टकराए, जिनसे लाइट से टकराव हुई, उनकी दोस्ती दुनिया में ऐसी क्षति, जिनका गाड़े से आदमी का टकराव चली, दुनिया में उनकी दोस्ती ऐसी रहती है। अच्छा, फिर दूसरी, ख्वाब देखे तो कुछ सच निकलता है, कुछ झूठ निकलता है। अली रजी अल्लाह तआला बोले, आदमी जब सो जाता है, उसका रूह अल्लाह की अरश तक जाता है। सोता है ना, हे क्या है भाई, हैं? अरश करने से अंगर तो चले गया, फर्श के ऊपर से अरश को नहीं ढुलता छाया जी ने, देख रहा हूँ हर तालीम के अंदर भी सोता नहीं गलत है, लेकिन सोए तो भी फिर ऐसी छाता क्या की है? तो आदमी सोता है तो उसका रूह अल्लाह की अरश तक जब जाता है, जाने से पहले उसका रूह जाग गया, जो ख्वाब पड़ता है वो झूठ निकलता है, और अल्लाह की अरश पे जाने के बाद जब रूह जागता है तो जो ख्वाबे देखते हैं वो सच निकलते हैं। दूसरी बात मालूम हो गई। अब तीसरी, आदमी कभी याद हो जाता है, कभी भूल जाता है। तो बोले अली रजी अल्लाह तआला, जैसा चांद है, चांद को अबर आड़ाता है तो उसकी रोशनी ख़त्म होती है, अबर निकल जाता है तो रोशनी निकलती है। दिल का भी अबर है, जब दिल को अबर आड़ आता है तो आदमी भूल जाता है, जब अबर निकल जाता है तो आदमी को याद हो जाती है। उमर रजी अल्लाह तो कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, मरने से पहले अल्लाह ने इन बातों को मुझे मालूम कराया। ऐसे सहाबीनों जिनके इरादे पे अल्लाह कुरान को उतारता था, उमर रजी अल्लाह तआला के इरादे पे, लेकिन सीखे फिर कैसा सिखाते थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा की तवाफ़ कर रहे, करते करते एक देहाती आदमी, खेड़ा गाँव का आदमी, उसका हाथ पकड़ के काबा का तवाफ़ करते करते उसे अत्तहियात सिखाए। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तो फरमाए, अल्लाह ये क्या कर रहे, आप कई को डाले, तस्बीह जेब में से कई को निकालना पड़ा। एक वक्त में दो काम कहाँ से चलेंगे? गौस भाई, तुम्हारा नाम गौस है, क्या है? सारे औलिया अल्लाह में इना को गौस कई को बोले? भाई बोला ये बात मैंने नहीं बोला। गौस से पाक मानने वालों को भी पूछो, इनको गौस से पाक क्यों बोले? नहीं बताएंगे वो। हाँ, वलियों का सरदार क्यों बोले, गौस से पाक क्यों बोले? और मानने वालों को पूछो, नहीं बताएंगे। क्या मैं पूछा? क्योंकि मदीना महीने में एक मरतबा आता रहता हूँ, अच्छी दोस्ती है भाई नईम भाई बोल के, पुरानी ज़माने की दोस्ती, तकरीबन 20 साल की दोस्ती थी, तो उनको मानते हो। मैं पूछा, भाई नईम ये बताओ कि गौस से पाक इनको कई को बोले हैं, क्या क्या की बताए? मैं बोलता हूँ सुनो। बोला गौस से पाक इनको कई को बोले हैं,
जब आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता तो वो मुस्लिम कहते हैं उनको। उनका ईमान आगे बढ़े तो मोमिन कहते हैं। क्या कहते? मोमिन। उनका ईमान और आगे बढ़े तो उनको सूफी कहते हैं। उसकी ईमान आगे बढ़े तो उसे वली कहते हैं, और आगे बढ़े तो उनको आफदाल कहते हैं। उनका ईमान और आगे बढ़े तो उनको कुतुब कहते हैं। जब उनका ईमान के चोटी को जब लग जाता है तो उनको गौसे पाक कहते हैं। इसीलिए इनको वलियों का सरदार बोला गया। और ताज्जुब में पड़ गया, अरे हमारा कुछ नहीं मालूम, इनको मालूम बोल, इतना बड़ा नाम वाले तुम हैं? तो क्या बोल रहा था भाई? गाड़ी कारू की अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तो फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात हमको ऐसा सिखाए जैसा कुरान के आयतों को सिखाया जाता है। रे भाई इधर देखो, खपथुरा है वो, आते रहते जाते रहते, अपने को क्या करने का है? अत्तहियात ऐसा सिखाए जैसा कुरान के आयतों को सिखाया जाता है। भाई शुक्र है अल्लाह का मेरे भाइयों, कहाँ बैठ के सीख रहे हम? उसके रास्ते में फांकों के नीचे मस्जिदों में सिखाने वाले मौजूद हैं। एक ज़माना वो था मेरे भाई, कितना लंबा सफ़र करते थे सीखने के लिए, कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक सफ़र करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो देखे, एक बड़े मियाँ ऊंट के ऊपर सफ़र करके आ रहे और चिलचिलाती धूप में सफ़र करके आए, लंबी सफ़र है, इतना काले पड़ गए, ज़मीन का रंग अच्छा दिस रहा उनासी, इतना काले पड़ गए उन्होंने। तो उमर रज़ी अल्लाह तो पूछे, भाई कहाँ से आ रहे? अरे भाई यासिन, तो वो भी डाल दिया शटर? नहीं डाला। अच्छा, ये मत पूछो क्या क्या नज़र आ रहा, जिसकी आंखों में जैसा है वैसा नज़र आ रहा। अब यासिन बोलेंगे, अमीर साहब मैं तो सो रहा नहीं, तुम्हारे आंखों में ऐसा नज़र आ रहा होगा मैं सोया जैसा। जिसकी आंखें खराब है उसमें सूरज का क्या कसूर है, लाइटिंग का क्या कसूर है? तो ज़मीन का रंग अच्छा दिस रहा, इतना काले पड़े हुए थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, भाई कहाँ से आ रहे तुम्हें? बोले मुल्क शाम से आ रहा हूँ। कहे मुल्क शाम से। कैसा आना हुआ? मदीना कहे अत्तहिया सीखने के लिए आया हूँ। बोले सुनना था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी गुंजान दाढ़ी थी, इतने आंसू उनके निकले, दाढ़ी में से पानी टपक के जमीन पे गिर रहे थे। और उमर रज़ी अल्लाह तआला कह रहे थे, अल्लाह की कसम। बाबू इधर आओ, अब निकालते, इधर आओ, आप इधर आओ, स्टैंड होना आपको, स्टैंड निकालना है, वो निकाल के उसके ऊपर डाल के ले जाओ। कुछ नहीं बोलते हूँ मैं, ये बोल रहा ना, निकाल के उसके ऊपर डालो जहाँ कपड़े लगे। क्या बोल रहे हो? दाढ़ी जहाँ बड़ी गुंजान दाढ़ी, इतना रोए वो बात सुन के, आंसू टपक के दाढ़ी के अंदर से जमीन के ऊपर गिरने लगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह की कसम तेरे को अजाब नहीं दिया जाएगा, इसीलिए कि तेरा वक्त ज़्यादा ऊंट के ऊपर गुजरा है। अत्तहिया सीखने मुल्क के शाम से मदीना, यहाँ बैठे बैठे सीखने मुश्किल हमारे को। देने वाले का दरवाज़ा खुला है, लेने वाले का दरवाज़ा ना खुला तो उसे कोई खुलवा नहीं सकेंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना है, हर जगह गवर्नरों को भी रखे हैं, सिखाने वाले मौजूद है। फिर उन्हें यहाँ क्यों आए बड़े मियाँ? इसलिए आए,
हज़रत आयशा की अत्तहियात और है, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की अत्तहियात और है, अब्दुल्ला इब्न रज़ियल्लाहु की अत्तहियात और है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की अत्तहियात और है, हज़रत आयशा और इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न मसूद और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चारों की अत्तहियात और है। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की अत्तहियात को लिए। ये बड़े मियाँ मदीना इसलिए आए, मदीने में कौन सा अत्तहियात चल रहा उसको मालूम करके सीख के जाने के लिए आए हैं। ऐसे सफ़र करते थे उस ज़माने के अंदर। जरीर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के बाहर आए। एक आदमी ऊंट के ऊपर आ रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये तुमसे मिलने के लिए आ रहा, ये तुमसे मिलने के लिए आ रहा। तो करीब आने के बाद पूछे, भाई कहाँ से आ रहे? तो बताए फलाना इलाका फलाना कबीले का हूँ। कि कैसे आना हुआ? पूछे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया, कहो क्या कहते हो? मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। तो वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाओ और कुछ बातें सिखाओ और वापस चल जाऊँगा। आपने कलमा पढ़ाए, कुछ बातें सिखाए, वो वापस जाने लगे। अभी कलमा पढ़े, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, जिहाद नहीं, कुछ नहीं, जा रहे थे। ऊंट का पैर ज़मीन के सुराख में पड़ा, और पड़ते ही ऐसा ऊंट नीचे गिरा। वो साहबी भी ऊंट के ऊपर से नीचे गिरे, फट बोल के सर को मार लगा इनको। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जरीर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों जाकर उठा के देखे, उनका जान निकल गई, उनका जान निकल गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, यूं ही इनका जिस्म से रूह अलग हुआ, फरिश्ते जन्नत का खाना लगा के इनको खिला रहे बोले। तो साहबा इकराम तो पूछे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो कलमा पढ़ के जा रहे, किस वजह से इनको फरिश्ते जन्नत का खाना खिला रहे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जहाँ से निकल के यहाँ तक आए हैं, इनके पेट में खाने का एक निवाला नहीं था, एक निवाला नहीं। यहाँ तक खा के भी नासी किया तो कौन क्या कर सकते? क्या भाई, एक सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में एक साहबी ऊंट के ऊपर से गिरे, गर्दन टूटी, रूह चले गया। भाई इनके पेट से कपड़ा हटाओ गए, पेट से कपड़ा हटाए तो पेट पे पत्थर बांध के है। तो बोले, मैं क्यों इनके पेट से कपड़ा हटाओ? बोला, मानो इनका जिस्म से यूं रूह अलग हुआ तो जन्नत के हुरा खाना लगाकर जन्नत का निवाला बना बना के साहबी को खिला रहे। पेटों में खाने के लुकमे नहीं, पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं। और दीन सीखने के लिए, अत्तहियात सीखने के लिए ये लोग कैसे सफ़र करते थे, सोचो मेरे भाइयों। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 13 साल की उम्र थी इनकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, 13 साल की उम्र है, 13 साल की। तो कहते थे, भाई आओ भाई, बड़े लोग है सीखेंगे, आओ को लोगों को बुलाते थे। वो लोग क्या बोलते थे मालूम है? वो बड़े लोग रहते पर हम कौन आके पूछ सको को बोलते थे। नो इन्हों नहीं आए कौन भी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक एक के पास, किसी के पास एक हदीस है बोल के मालूम हुआ, जाके उनके दहलीज पे बैठ जाते। उन्हें अंदर आराम कर रहे, जगाते नहीं, बैठे रहते। आज के सड़कें नहीं, मट्टी के सड़कें, हवा चलता, धूल उठ के ऊपर गिरता था। जब तक वो सोते रहते, बैठे रहते। जब वो बाहर निकलते, अरे भाई कब से बैठे हैं, इतना देर हुआ, मुझे जगा लेते तो ज़रूरत मेरी है इसलिए आया हूँ, आपके पास ये हदीस है बोल के मालूम हुआ, मुझे सिखा दो।
ऐसा सीखते 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 इतना इल्मों का खजाना इनके पास रह गया। मौर्रिखीन तारीख लिखने वाले कहते हैं जो मजमा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास हम देखे हैं किसी और के पास हम नहीं देखे। बोले भाई कुरान की तफसीर होती बोल के ऐलान करते, एक मजमे का मजमा आके घर में बैठता, घर भर जाता। मसाइल के बारे में बोला जा रहा, ये चले गए तो और एक मजमा आके बैठ जाता। हदीस का बारे में बोला जा रहा, इन्हों चले गए तो और एक मजमा आके बैठता था। लोग कहने लगे ये लड़का बड़ा होशियार का है, बड़ा होशियार का है। अब 13 साल की उम्र इनकी, लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला क्या करते थे, बड़े बड़े साहबा के साथ बिठाते थे, बड़े बड़े साहबा के साथ। अब बच्चे को लाकर हमारे बाजू को बिठा रहे नो, कहो जरा ये हुआ, बच्चे को लेकर के हमारे बाजू बिठा रहे। तो उमर रजी अल्लाह तआला बोले अब बच्चा है क्या है कि मैं तुम्हारे को बताता हूँ, कहे तुम्हारे को बताऊँगा। भाई ये जो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह जो सूरा है इसमें क्या है कि बताओ, कहे उमर रजी तो साहबा को, इसमें अल्लाह के नबी का मदद का वादा किया गया, वो है कहे अक्सर। तो उमर रजी अल्लाह तआला इब्ने अब्बास को पूछे कि भाई क्या है इसके अंदर है, तो उन्होंने बोले इसमें तो अल्लाह के नबी दुनिया से जाने का नजर आ रहा। कहे उमर रजी अल्लाह तआला बोले इस बच्चे से बढ़कर भी मैं नहीं जानता। कहे जब पता चला इन्हों क्या है बोल कर, एक मरतबा अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के पास है एक यहूदी एक सवाल लिखा, एक सवाल, दो सवाल लिखा, दो सवाल। एक है वो कौन सी ज़मीन है जहाँ सूरज की रोशनी एक ही बार पड़ी, सूरज की रोशनी एक ही बार पड़ी फिर दूसरी बार कभी नहीं पड़ी। फिर वो कौन से दोनों भाई है जुड़वा, अमड़ाल जमड़ाल बोलते, वैसे उर्दू में जुड़वा बोलते, एक ही वक्त में पैदा हुए, मरे भी एक ही वक्त में, लेकिन दोनों को 100 साल का फर्क है। वो सवाल का जवाब देना, अमीर माविया रजी अल्लाह तआला बोले ये जवाब तो मेरे नबी के खानदान से मिलेगी, इब्ने अब्बास को बुलाओ। बुलाया गया। वो दो सवाल बड़े कठिन थे, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला दिए। एक जवाब जो सूरज की रोशनी बड़ी कभी नहीं पड़ी, बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर पार कर रहे, उस मौके पे सूरज की रोशनी पड़ी और फिर कभी नहीं पड़ी। दूसरा वो दो भाई एक ही बार पैदा हुए, एक ही वक्त में मरे, दोनों को 100 साल का फ़र्क ये है, एक अजीर अलैहिस्सलाम, दूसरे उजैर अलैहिस्सलाम, जुड़वा भाई थे, एक ही बार पैदा हुए थे, अमड़ाल जमड़ाल। 100 साल का फ़र्क इनको कैसा हो गया मालूम? उजैर अलैहिस्सलाम है गधा या खच्चर पे सफ़र करे, साथ में रोटी है, अंगूर है, लेके चले, बैतुल मुक़द्दस के इलाके में पहुँचे। वहाँ बुख्ते नसर बादशाह शहर पे हमला करके पूरा तहस नहस कर डाला, ज़मीन का हवाला, पूरा वीराना पड़ा हुआ था। उजैर अलैहिस्सलाम के दिल में आया ये आबाद होगा कैसा, होगा कैसा। बस इतना बोले सवारी को वहाँ बांधे और रोटी पे अंगूर का रस निचोड़े ताकि नरम हो जाए, मैं खा लूँ। अब बोलो, अब रोटी के ऊपर है अंगूर का रस जब निचोड़े है, ये नरम होने में कितना टाइम लगता भाई? इसी के अंदर अल्लाह ने ना का जान निकाल डाला। 100 साल वहाँ मर को पड़ को है, 100 साल मर के पड़ के है। 100 साल के बाद अल्लाह भी जान डाला, उठ के देखे तो शहर आबाद है। ये जो रोटी जिस पे इन्होंने अंगूर निचोड़े 100 साल के बाद भी वैसी छे हो। जो गधा या सवारी कच्चर बांधे उसका नामो निशानी नहीं। अब वो जमीन के अंदर से उसकी हड्डियां निकल रहे, पाटा जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, फिर उस पर गोश्त चढ़ा, खाल चढ़ा, जान पड़ गई, खड़े हो गया वो। अब अल्लाह बोले उजैर कितने साल यहाँ मर के, यहाँ आप सो के है मालूम? सोए नहीं, मर के पड़े हैं। 100 साल तुम यहाँ मर के सब पड़े हुए हैं।
इनको भी लोग अल्लाह का बेटा बोले, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को बोले इनको भी अल्लाह का बेटा बोले। ये जवाब मिली है हमारे नबी के ख़ानदान से और इब्न अब्बास 13 साल की उम्र से मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हुए। इसके लिए मेरे भाइयों वक्त तो ज़ाया मत करो। दोनों एक जगह बैठे वो तो कुछ तो भी बातें शुरू हो गए तो फिर खेल ख़त्म। हाँ, सीखना है दूर दूर अलग अलग बैठ के हर एक अपना अपना फ़िक्र करना। शहर में जाने के बाद ये फुर्सत ही नहीं रहती। हाँ, फुर्सत ही नहीं रहती। ज़रा तुम लोग सोचो, एक जगह मिल के 1 घंटा बैठ को बात करने मौका मिलेगा क्या भाई? नहीं मिलता, क्योंकि हर एक बिजी है, चुमटी भी बिजी है। इसलिए फ़िक्र करो इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई? इनफरादी वक़्त में हर साथी अपना अपना अमल का फ़िक्र करो, ठीक है ना? हज़ीर अलैहिस्सलाम